तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 6। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 12 सेफ्टी सेव्स। तो बच्चों सबसे पहले हम इसे इंग्लिश में रीडिंग करेंगे, इसके बाद इसके हम मीनिंग देखेंगे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स या न्यू वर्ड्स हैं जो उनको देखेंगे जो बुक में दिए गए हैं। इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और लास्ट में हम इस वीडियो के अंत में इसके एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं लेसन 12 सेफ्टी सेव्स। कुणाल was a careless boy. He often did things carelessly. His parents always scolded him for his carelessness. One fine morning, he was very disturbed as he could not find his pen. He needed the pen to write his English test. He searched for it everywhere but could not find it. As Kunal was getting late for his school, he hurried down the road to catch the bus to school. He saw a large red-colored bus leaving the bus stop. He ran after it and jumped onto the bus. An old man who was sitting in the bus says, "Old man, don't you know? Trying to catch a running bus is a dangerous thing to do." Kunal, I am in a hurry. I have a test today. I don't want to miss my test. Old man, it's better to miss a test than to miss the rest of your life. Kunal, sorry uncle, I will keep it in mind and follow it. The bus was crowded. Kunal looked for his friends, but no one was there. He found that he was on the wrong bus. His face turned pale. He jumped off the moving bus. He landed with a bump on the road. A scooter was coming from behind. It stopped just a few inches away from him. The woman on the scooter shouted at him, "Woman, do you want to hurt yourself?" Kunal, "No, auntie. I am sorry. I am getting late for school." Woman, "Does this mean you will jump off the bus? Don't you know jumping off a moving bus is dangerous?" Kunal started crying loudly. He was badly injured. He told her the whole incident. She listened carefully. Woman, remember, it is always better to be safe than sorry. Kunal, what should I do, auntie? Will you please take me to the doctor? Woman, sure. I can't leave you alone in such a situation. Sorry. Kunal, thank you very much, auntie. On the way, she recited him a poem. Never play on the road. Never run across. Never walk in groups. Never break the traffic rules. Never jump from a bus. Never catch a running bus. Never put your head or hands out. Never yell, scream or shout. Doing this, you will always be safe and sound, both you and everyone around. Kunal had learned a lesson. He vowed never to be careless ever again. इसके बाद इसके हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं और यहाँ पे दिया है बेटर लेट दैन नेवर। तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स में आते हैं। डेंजरस, डेंजरस मीन होता है खतरनाक। पेल मीन पीला पड़ना। क्राउडेड मीन भीड़ भरी। और इंजर्ड मीन होता है घायल होना। इंसिडेंट मीन होता है घटना। यल मीन होता है चिल्लाना। अब इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। लेसन 12
पाठ 12 सेफ्टी सेव्स। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा और सेव्स मीन बचाती है, यानी सुरक्षा बचाती है। कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय। कुणाल एक लापरवाह लड़का था। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। वह ज़्यादातर काम लापरवाही से करता था। हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कोल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस। उसके माता पिता हमेशा उसे लापरवाही के लिए डांटते रहते थे। वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत परेशान था। एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, क्योंकि उसे उसकी कलम नहीं मिल रही थी। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट, उसे अंग्रेजी की परीक्षा के लिए कलम की आवश्यकता थी। ही सर्च्ड फॉर इट एवरीवेयर, उसने प्रत्येक स्थान पर उसे ढूंढा, यानी पेन को ढूंढा। बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वह उसे नहीं मिली। एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट, कुणाल को विद्यालय जाने के लिए देर हो रही थी। एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि कुणाल को विद्यालय जाने के लिए देर हो रही थी। फॉर हिज स्कूल, अपने स्कूल, कुणाल को अपने स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी। ही हरिड डाउन, वह तेजी से भागा। द रोड टू कैच द बस टू स्कूल, यानी वह बस पकड़ने के लिए सड़क पर तेजी से भागा। ही वॉज अ लार्ज रेड कलर्ड बस लीविंग द बस स्टॉप, उसने एक बड़ी लाल बस को बस स्टॉप से निकलते देखा। ही रैन आफ्टर इट, वह उसके पीछे भागा। एंड जम्प्ड ऑन टू द बस, और चलती बस में कूदकर चढ़ गया। एंड ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हु वॉज सिटिंग इन द बस सेज, जो बस में बैठा था, सेज कहता है, ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज अ डेंजरस थिंग टू डू, एक चलती बस को पकड़ने की कोशिश जानलेवा हो सकती है, जानलेवा खतरनाक हो सकता है। कुणाल, आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। आई हैव अ टेस्ट टुडे, आज मेरी परीक्षा है। आई डोंट वांट टू मिस माई टेस्ट, मैं अपनी परीक्षा को नहीं छोड़ना चाहता। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट, अपने बाकी बचे, यानी यू कहाँ पे दिया गया, हाँ, आई डोंट वांट टू मिस माई टेस्ट, मैं अपना परीक्षा नहीं छोड़ना चाहता। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट दैन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कहने का मतलब अपने बाकी बचे जीवन को छोड़ देना बेहतर है, छोड़ देने से बेहतर है कि एक परीक्षा छोड़ देना। कुणाल, सॉरी अंकल, माफ कीजिएगा श्रीमान, आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट, मैं इसे ध्यान में रखूंगा और इसका पालन करूंगा या पालन करूंगा। द बस वॉज क्राउडेड, बस में बहुत भीड़ थी। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स, कुणाल ने अपने मित्रों को ढूंढा। बट नो वन वॉज देयर, लेकिन परंतु वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ही फाउंड दैट, उसने सोचा, उसने पाया कि ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस, कि वह गलत बस में चढ़ गया था। हिज फेस टर्न पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस, वह चलती बस से नीचे कूद गया। ही लैंडेड विद अ बम्प ऑन द रोड, वह धड़ाम से सड़क पर गिरा। आ स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, एक स्कूटर पीछे से आ रही थी। इट स्टॉप्ड, वह रुकी। जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम, यानी कुणाल से कुछ इंच की दूरी पर, यानी वह उससे, यानी स्कूटर जो है उससे कुछ इंच की दूरी पर रुकी। द वुमेन ऑन द स्कूटर शाउटेड हिम, स्कूटर चलाने वाली महिला चिल्लाती हुई बोली, उस पर चिल्लाती हुई बोली। वुमेन, महिला, डू यू वांट टू हर्ट योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप को चोट पहुंचाना चाहते हो। कुणाल, नो आंटी, नहीं मैडम। आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। वुमेन, औरत, महिला,
डज दिस मीन्स यू विल जंप ऑफ द बस? इसका मतलब कि तुम बस से कूद जाओगे. डोंट यू नो जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस इज डेंजरस? क्या तुम नहीं जानते कि चलती बस में कूदना खतरनाक है? कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली. कुणाल तेजी से चिल्लाना शुरू किया, यानी रोने लगा. ही वॉज बैडली इंजर्ड. वह बुरी तरह से चोट खा गया था, यानी वो घायल हो गया था. ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट. उसने उस महिला को पूरी घटना सुनाई, सारी घटना सुनाई, संपूर्ण घटना सुनाई. इंसिडेंट में घटना होता है. शी लिसन्ड केयरफुली. उसने ध्यान से उसकी पूरी घटना को सुना. वुमेन औरत, महिला. रिमेंबर याद रखो. इट इज ऑलवेज बेटर टू सेफ देन सॉरी. सुरक्षित होना हमेशा अफसोस करने से ज्यादा बेहतर है. कुणाल, व्हाट शुड आई डू आंटी? अब मैं क्या करूं मैडम? विल यू प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर? क्या आप कृपा करके मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी? वुमेन, महिला. श्योर, बिल्कुल. आई कॉन्ट लीव यू अलोन इन सच अ सिचुएशन. मैं तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में अकेला नहीं छोड़ सकती. कुणाल, थैंक यू. कुणाल कह रहा है थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच आंटी. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. ऑन द वे, रास्ते में, सी रिसाइडेड हिम अ पोएम. महिला ने कुणाल को एक कहानी सुनाई, कविता सुनाई. पोएम मीन कविता होता है. नेवर प्ले ऑन द रोड. कभी सड़क पर मत खेलो. नेवर रन अक्रॉस. कभी सड़क पर मत दौड़ो. नेवर वॉक इन ग्रुप्स. कभी समूह में मत चलो. नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स. कभी यातायात के नियमों को मत तोड़ो. नेवर कैच अ रनिंग बस. कभी चलती बस पर नेवर जंप फ्रॉम अ बस. कभी बस में मत कूदो, बस से मत कूदो. नेवर कैच अ रनिंग बस. कभी चलती बस पर मत चढ़ो. नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट. कभी अपने हाथ या सिर बाहर मत निकालो. नेवर यल स्क्रीम और शाउट. कभी भी चीखो चिल्लाओ मत. डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड. यह सब करके तुम सदैव सुरक्षित रहोगे. बोथ यू एंड एवरीवेयर अराउंड. तुम और तुम्हारे आसपास सभी सुरक्षित रहेंगे. कुणाल हैड लर्न अ लेसन. कुणाल एक सबक सीख चुका था. ही वॉव्ड नेवर टू बी केयरलेस एवर अगेन. उसने दोबारा कभी लापरवाही न करने का वादा किया. अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, सोच विचार वाले प्रश्न दिए गए हैं. पहला क्वेश्चन दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो. पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट काइंड्स ऑफ अ बॉय वाज कुणाल, यानी व्हाट काइंड्स ऑफ अ बॉय वाज कुणाल. कुणाल किस प्रकार का लड़का था. तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय. कुणाल एक लापरवाह लड़का था. अगला क्वेश्चन बी दिया गया है कि वाई डिड कुणाल नीड अ पेन. कुणाल को एक पेन की आवश्यकता क्यों थी. तो इसका उत्तर देखेंगे. तो इसका आंसर लिखेंगे कुणाल नीडेड अ पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट. कुणाल को अपने अंग्रेजी की परीक्षा देने के लिए पेन की आवश्यकता थी, यानी अंग्रेजी की परीक्षा में लिखने के लिए पेन की आवश्यकता थी. क्वेश्चन नंबर सी है कि वाई इट इज डेंजरस टू कैच अ रनिंग बस. चलती बस पकड़ना खतरनाक क्यों है. तो इसका आंसर लिखेंगे कि इट इज डेंजरस टू कैच अ रनिंग बस बिकॉज वी मे ट्रिप, फॉल एंड इंजर आवरसेल्व्स बैडली. इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ. यानी कहने का मतलब कि चलती बस में चढ़ना इसलिए खतरनाक है क्योंकि इससे हम गिर सकते हैं, ठोकर खा सकते हैं और गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं. इससे मृत्यु भी हो सकती है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी. व्हाई डिड कुणाल जंप ऑफ द बस. कुणाल बस से क्यों कूद गया.
तो इसका आंसर लिखेंगे व्हेन कुणाल फाउंड आउट ही वाज ऑन द रॉन्ग बस हिज फेस टर्न्ड पेल एंड ही जंप्ड ऑफ द बस। मीन्स जब कुणाल को पता चला कि वह गलत बस में है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बस से कूद गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई, हाउ डिड द वुमेन हेल्प कुणाल, महिला ने कुणाल की सहायता कैसे की। तो इसका आंसर लिखेंगे कि द वुमेन ऑफर्ड कुणाल अ लिफ्ट एंड टुक हिम टू द डॉक्टर एज ही वॉज इंजर्ड। महिला ने कुणाल को लिफ्ट दी और उसे डॉक्टर के पास ले गई क्योंकि वह घायल था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट लेसन डिड कुणाल लर्न, कुणाल ने क्या सबक सीखा। इसके आंसर में लिखेंगे कुणाल लर्न अ लेसन्स ऑन रोड सेफ्टी रूल्स दैट वन शुड फॉलो फॉर वंस ओन सेफ्टी एज वेल एज एवरीवन सेफ्टी। कुणाल ने सड़क सुरक्षा नियमों का पाठ सीखा जिसका पालन स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ सभी की सुरक्षा के लिए भी किया जाना चाहिए। इसके बाद है वर्ड पावर, शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया कि अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें हमें साइलेंट वर्ड्स पे साइलेंट लेटर पे अंडरलाइन करना है। जैसे इसमें दिया है SOUR आवर, इसको हम आवर बोलते हैं, हावर ना बोल करके आवर बोलते हैं। तो यहाँ पे H साइलेंट है तो S पे हम अंडरलाइन कर देंगे। ऑफन इसको बोलते हैं, T इसमें साइलेंट, इसमें T अंडरलाइन कर देंगे। इसको निट बोलते हैं, निट मीन बुनना होता है, आवर मीन घंटा होता है, ऑफन मीन प्राय होता है, निट मीन बुनाई करना होता है, बुनना। तो इसमें के जो है साइलेंट है, के का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, केवल निट बोला जाता है। इसमें रॉन्ग, इसमें W साइलेंट है, डाउट इसमें B साइलेंट है, नो इसमें के साइलेंट है, नी के इसमें के साइलेंट है। जैसे नो मीन जानना होता है, नी मीन घुटना होता है, डाउट मीन संदेह होता है, रॉन्ग मीन गलत होता है। के COULD कुड मीन होता है सकना, और कुड मीन सका, और यहाँ पे L साइलेंट है। यहाँ पे राइट यानी WRIT राइट, इसमें W साइलेंट है। राइट मीन लिखना होता है, KNIFE का नाइफ, नाइफ मीन चाकू होता है, इसमें के साइलेंट है। लिसन मीन सुनना, इसमें T साइलेंट है। शुड मीन चाहिए, इसमें L साइलेंट है। होल मीन संपूर्ण, इसमें W साइलेंट है। वॉक मीन चलना होता है, टहलना होता है, इसमें L साइलेंट है। फॉक मीन समूह होता है, इसमें L साइलेंट है। तो इस तरह से जो साइलेंट वर्ड है उसको हमने रेड से अंडरलाइन कर दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लैंग्वेज प्रैक्टिस में an adverb is a verb that modifies a verb, an adjective or another adverb। तो इसमें दिया गया है जैसे लाउडली, लाउड से लाउडली हो गया, काइंड कीन से कीनली, कीन मीन उत्सुक होता है, कीनली उत्सुकता पूर्वक, क्विक मीन क्विकली हो गया, हरेटली हो गया, स्लोली हो गया। तो मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ly, तो हमें क्या करना है, इन शब्दों में ly जोड़ करके नए वर्ड बनाने हैं। ऑन वन इज डन फॉर यू, एक इसमें करके दिया गया है। तो जैसे हम सैड में ly जोड़ देंगे तो सैडली, इसमें लाउड लाउडली, केयरलेस केयरलेसली, और बैडली, केयरफुल केयरफुली, और लाइट का लाइटली, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, ब्रांड का फ्रेंडली, वीक का वीकली, मंथ का मंथली, ईयर का ईयरली। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे हमको अपनी कॉपी में लिखना है। तो इस तरह से हम ये लाउड प्लस ली लाउडली, केयरलेस प्लस ली केयरलेसली, बैड प्लस ली बैडली, और केयरफुली प्लस ली ly जोड़ देंगे तो इसमें केयरफुली हो जाएगा। लाइट में ly जोड़ देंगे, लाइटली हो जाएगा। ब्यूटीफुल में ly जोड़ देंगे, ब्यूटीफुली हो जाएगा। फ्रेंड में ly जोड़ देंगे, फ्रेंडली हो जाएगा। इसके बाद वीक में ly जोड़ देंगे, वीकली हो जाएगा। मंथ में ly जोड़ देंगे, मंथली हो जाएगा। और लास्ट है ईयर में ly जोड़ देंगे तो इसको ईयरली बोलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब। सही एडवर्ब हमें इसमें भरना है। सी सिंग्स स्वीटली, तो यहाँ पे स्वीटली दिया है। नीटली, नीटली मीन स्वीटली मीन मीठा मीठा होता है, मधुर होता है, और नीटली मीन सफाई होता है। तो यहाँ पे स्वीटली हो जाएगा। सी सिंग्स स्वीटली, उसने मधुर गीत गाया। और यह हो जाएगा सी स्पीक केयरली, क्लियरली मतलब स्पष्टता के साथ वो बोला। और हाईली मीन ऊंचाई होता है।
और इसके बाद सी साउट्स लाउडली, वह तेजी से चिल्लाया। ही राइट नीटली, इसमें नीटली हो जाएगा, इस तरह से हम इसको बता देते हैं। इसमें स्वीटली हम भर देंगे, इसमें हमारा क्लियरली हो जाएगा। सी स्पीक्स क्लियरली, और इसके बाद आता है ही साउट लाउडली हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है ही राइट नीटली हो जाएगा, वो साफ लिखता है, स्वच्छ लिखता है। और लास्ट दिया गया है अ टार्टाइज वॉक्स स्लोली, स्लोली मीन बैडली मीन बुरी तरह से, और स्लोली मीन धीरे धीरे। टार्टाइज कैसे चलता है, टार्टाइज जो है धीरे धीरे चलता है, तो अ टार्टाइज वॉक स्लोली। इसके बाद दिया गया है आगे कीप इन माइंड, ध्यान में रखें। दिया गया है चिल्ड्रंस और यंगस्टर्स विदाउट लाइसेंस शुड नॉट बी अलाउड टू राइड टू व्हीलर्स इवन फॉर अ जॉय राइड। मीन्स बिना लाइसेंस वाले बच्चों या युवाओं को मनोरंजन के लिए भी 2 पहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगला सेंटेंस दिया गया है कि ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग टू व्हीलर। जब भी 2 पहिया वाहन आप चलाएं तो हेलमेट जरूर पहने। तीसरा दिया गया है कि ऑलवेज वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार। जब भी कार चलाएं तो उसमें सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। इसके बाद आता है नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल्स। कोई भी वाहन है, अगर आप उस पर बैठे हैं, यानी चलती गाड़ी में कह सकते हैं कि कभी भी चलती गाड़ी से अपना सिर या हाथ बाहर ना निकालें। नेवर टॉक ऑन मोबाइल फोन विल ड्राइविंग अ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन द रोड। जब भी आप रोड पे चल रहे हैं या व्हीकल्स पे ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप मोबाइल पे बात मत करें। कहने का मतलब कि गाड़ी चलाते समय या चलते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात ना करें। अगला दिया गया है कि ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ पेवमेंट, और हमेशा फुटपाथ पर चले। पेवमेंट मेन फुटपाथ होता है और फुटपाथ मेन भी फुटपाथ होता है। अगला दिया गया है कि क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, केवल जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करें। लास्ट दिया गया है कि वाइल क्रॉसिंग द रोड लुक एट द राइट। जब भी आप रोड क्रॉस करें, सड़क को पार करें, लुक एट द राइट, पहले दाएं देखें, देन टू द लेफ्ट, फिर बाएं देखें, एंड देन राइट, और फिर फिर दोबारा दाहिने देखें। एंड ए क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर। रोड तभी पार करें जब रोड एकदम साफ हो, स्पष्ट हो, मतलब कोई खतरा ना हो, तभी हम रोड पार करें। अब इसके बाद ये एक्टिविटी एक इसमें दी गई है बच्चों, तो एक्टिविटी को आपको स्वयं करना है। इसमें दिया गया है कौन सा फिगर्स इसमें सही है, कौन सा गलत है, तो इसमें कुछ फिगर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए, और ये दिया गया है इसमें कि ये जो है गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही गाड़ी को, मतलब रोड को पार करना चाहिए, सड़क को पार करना चाहिए। तो इसमें कुछ बातें बताई गई हैं, इनको आप लोग इसमें अंतर देखेंगे, क्या गलत है और क्या सही है, इसके विषय में आपको डिस्कशन आपस में करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।